हे गाइस, आज मेरा 24 आवर ऑन कॉल ड्यूटी है एज एन इंटर्न इन पीएचसी दयालपुर। तो मैं इमरजेंसी पार्ट ऑफ द पीएचसी दयालपुर में आज पोस्टेड रहूँगा फॉर 24 आवर्स फ्रॉम 9 AM राइट नाउ टू 9 AM टुमारो, राइट? एंड टुडे इज 10th of March, right? So basically that is the area where I will be posted. Let's go. I have to be very shy while recording all of this. You can see this is the ward and emergency where I will be working today. At the emergency room, this is a 4-bedded ward where the pregnant females who are about to deliver are admitted here. They are observed. After the delivery, they are kept for observation for 48 hours of the neonate as well as the mother, and then they are discharged. This is a small drugstore where all the essential medicine required to manage emergency cases are kept. Just beside the drugstore, this is a computer room where we enter the data regarding the admission and discharge of the pregnant females who are admitted in the 4-bedded ward. Guys, he is a 61-year-old COPD patient and he has been smoking heavily for past 20 years. बीड़ी सिगरेट स्मोक करते थे, जिसकी वजह से इनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको COPD कहते हैं, विच इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, इनको हो गई है। लंग्स इनके बेसिकली ख़राब हो रहे हैं। OPD में ये क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ है, OPD में बार बार ये चेकअप के लिए आते ही थे, रेगुलर विजिट करते थे। ऑलरेडी ये मीटर डोज इनहेलर सैल्ब्यूटामॉल फोराकॉट पे रहे हैं एंड डेरी फाइनल भी इनको चल रही थी, बट इनको पैल्पिटेशन होने लगी। सुबह सुबह आए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में थे एंड इनको पैल्पिटेशन हो रही थी, ट्रेमुलस थे, सिंपैथेटिकली एक्टिव थे, बीपी इनका हाई था, जेबी मेरे को डिस्टेंडेड दिख रहा था। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे थोड़ा मेरे को हेपाटोमेगली भी लगी एंड पीडल एडिमा आप देख सकते हो, मैंने पोस्ट डाला है। आप थंब प्रिंट मेरा देख सकते हो, उनका पैर सूज गया था। बेसिकली आई थिंक ही इज़ प्रोग्रेसिंग टू ऑल दी साइंस आर इंडिकेटिव ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। आप इनका एक्सरे भी देख सकते हो। ECG मैं नहीं अटैच कर पाया, बट हाँ उस पर मेरे को टॉल पी वेव दिख रही थी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पी पल्मोनियल, characteristic of right sided heart failure due to lung impairment and या हम लोग इनको रेफ़र कर रहे हैं बल्लभगढ़ एंड वो वहीं पे मैनेज हो पाएंगे। अभी तो हम लोग ने नेबुलाइज्ड सैल्ब्यूटामॉल इनको दे दिया जस्ट टू रिलीव द रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, बट येस दिस इज व्हाट इट स्मोकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कैन डू टू योर लंग. So guys, you can see that the patient presented with a bee sting. He had swelling all over his face, especially at the site of the bee sting. There was itching, erythema, burning sensation. I could not capture the other side of the face, right? But there were multiple bee stings, and therefore we gave him IM injection of phenyramine. We also prescribed him chlorpheniramine maleate 4 milligram 4 to 6 hourly. And we also prescribed local for local application hydrocortisone and lactocalamine lotion. Guys, this patient had a history of right-sided lower limb amputation 1 year ago. For past 2 to 3 months, he has been having repeated infection of the amputated wound, and he had already received a 5-day course of cefixime 200 milligram BD, but even after that he did not get any relief from the infection. So right now we are prescribing him a stronger antibiotic, amoxiclav 625 milligram TDS for 5 days for the oozing wound, and we have also advised him to send the pus sample for culture and sensitivity at some private clinic or Ballabgarh hospital, sub-district hospital. Let's see after 5 days whether his wound dries out or not. So guys, अभी 12:30 हो रहा है, लंच ब्रेक हो गया है। फॉर्चुनेटली अभी कोई पेशेंट तो नहीं आ रहा, सो आई कैन हैव लंच इन पीस। लास्ट पेशेंट अभी जस्ट मैंने जो देखा है वो ANC की पेशेंट थी, 36 वीक उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन था। उसका एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट जो है नेक्स्ट मंथ का है। अभी वो पेन के साथ, पेन एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट की एंड पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पे ऑस क्लोज था, कोई शो नहीं था, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल पेन नहीं था, लेबर पेन नहीं था। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद फॉल्स लेबर हो सकता है या फिर कोई आई थिंक गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी टैबलेट पैरासीटामॉल दे दिया एंड उसका हीमोग्लोबिन जनवरी में कराया था, लो था। सो अभी कल उसको फॉलोअप करने बोला है
एंड अगर हीमोग्लोबिन उसका कम होता है, क्योंकि 34 वीक से ज़्यादा है और 7 ग्राम से कम का हीमोग्लोबिन होता है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा बिफोर द डिलीवरी। अदरवाइज़ 7 ग्राम से ज़्यादा होता है तो आयरन सुक्रोज दे देंगे। ठीक, तो अभी लंच कर लेते हैं, बाय। So guys, it is 2:35 p.m. right now. After the lunch, I had one patient जो कि फीमेल थी. She came with her 7-month-old kid. एंड बच्चे को जो था वो निमोनिया था, क्योंकि उसको फीवर था, कफ कोल्ड था, एंड मेरे को बेसल क्रेप्ट सुनाई दे रहे थे ऑन ऑस्कल्टेशन इन द बेसल एरिया ऑफ द लंग्स। एंड मम्मी को भी हिस्ट्री रही है 2 दिन पहले की निमोनिया की। शी ऑल्सो हैड फीवर, कफ कोल्ड एंड बेसल क्रेप्ट। दोनों को मैंने एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल फॉर फीवर एंड सेट्राजीन दे दिया फॉर कोल्ड। लेट्स सी, रिव्यू करेंगे उनको 3 दिन बाद क्या होता है, क्या सीन होता है, राइट। सो गाइस, राइट नाउ इट इज़ 7:30 p.m. इन द इवनिंग। 2:30 बजे के बाद से अभी तक बिल्कुल बैठने का समय नहीं मिला। बैक टू बैक पेशेंट्स आते रहे, पीठ भी दर्द करने लगी है अभी तो। काफ़ी पेशेंट्स आए, डॉग बाइट के केस आए, 3 वर्टिगो के केसेस आए थे, चक्कर आने के केसेस थे, तो सिनारजीन मैंने उनको प्रिस्क्राइब कर दिया। बाकी 1-2 जो हमारे पास ड्रग स्टोर में जो ओपीडी वाली दवाइयाँ नहीं होती है, वो बेसिकली वो कल ओपीडी से ले लेंगे। एंड फिर एक नियोनेटल सेप्सिस का केस था, उसमें ही हमें 1.5 आवर्स लग गया उनको रेफ़र करने में, मैनेज करने में। एंड वो बेबी बेसिकली एक मिसेस लक्ष्मिया, वो मेरे अंडर ही डिलीवर की थी, जो मेरी लास्ट लॉन्ग ड्यूटी थी। उनका जो बेबी था 5 डे ओल्ड था, एंड मेल था। उसको मल्टीपल पस्ट्यूल्स थे अम्बलाइकल एरिया में एंड जेनाइटल एरिया में। आई डिस्चार्ज था, फीवर था, वीक कराई थी, फीड नहीं कर रहा था, यूरिन सिर्फ 2 बार पास किया था सुबह से। सो लग ही रहा था सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेप्सिस का केस है। एंड यहाँ पे पीएचसी में तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो, तो हम लोग ने एसआर पीड्स एम्स के जो हैं, जो बल्लभगढ़ में पोस्टर, उनसे कोऑर्डिनेट करके उस बेबी को हम लोग ने रेफ़र कर दिया। आई होप वो बेबी सही हो जाए, बिकॉज वो मेरी पहली डिलीवरी थी जो मैंने कंडक्ट की थी। सो एक अटैचमेंट सा हो जाता है। बहुत ही क्यूट सा बेबी था, आई होप वो सच्ची में सही हो जाए। दूसरा इंटरेस्टिंग केस अभी आया, जस्ट अभी। 70 ईयर ओल्ड अप्रॉक्सीमेटली एक बाबा जी थे, उनको सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था, सीओपीडी का वो भी पेशेंट थे। उनको अभी सैल्ब्यूटामॉल दिया, नेबुलाइज्ड, आप फोटो में देख सकते हो। एंड उनको पफ भी दे दिया सैल्ब्यूटामॉल का SOS, एंड एक IM रैंटैक की इंजेक्शन दे दी, बिकॉज उनको काफ़ी एसिडिटी हो रही थी, जो कॉमन पार्लांस में कहते हैं ना, तेज़ाब बन रहा था। लेट्स सी रात को क्या केसेस आते हैं, डिनर के समय होपफुली कोई डिस्टर्ब ना करे। लेट्स सी। सो गाइज, इट इज़ 10:50 राइट नाउ, एंड डिनर थैंक गॉड मेरे को आराम से करने को मिल गया। उसके बाद से एकदम नहीं फ्री हुआ। एक पेशेंट था, अल्कोहलिक था, गांव का एरिया है, पी के सब मस्ती मार रहे होते हैं। बोल रहा था उसकी सैलरी आई थी, पार्टी कर रहा था, सिर के बल गिर गया, तो टाँका लगाना पड़ गया यहाँ पे। फिर एक पेशेंट आया 17 ईयर ओल्ड, अपेंडिसाइटिस। मैं सस्पेक्ट कर रहा था, उसको बल्लभगढ़ रेफ़र किया अल्ट्रासाउंड के लिए। फिर एक और पेशेंट आई, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था, उसको भी नेबुलाइजर पे डाला सैल्ब्यूटामॉल। एंड देन अभी एक ANC पेशेंट आई है, उसका वो जो वाटर शेडर ब्रोकन है, ठीक है, तो हर वो वाटर हैज़ जस्ट ब्रोकन, एंड अभी कॉन्ट्रैक्शन उसको शुरू नहीं हुआ है। सो इट इज़ अ केस ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज़ द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ लेबर पेन्स। एंड लेट्स सी, उसको मॉनिटर करेंगे, 4 आवर्ली PV करना होगा, एंड वी विल सी कैसा प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, राइट। विल कीप यू अपडेटेड। आज तो शायद रात भर जगना पड़ जाए, बिकॉज अगर इफ़ प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज़ गुड एंड वी फील दैट वी नीड नॉट रेफ़र हर टू बल्लभगढ़, देन उसको डिलीवर करना होगा, एंड फिर एक अलग राउंड होगा डॉक्यूमेंटेशन का एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो गाइस, उस ANC के केस के बाद कुछ केसेस आए गैस्ट्राइटिस एंड सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन के। उनको रैंटैक दिया, पैंटोप्राजोल IV दे दिया, एंड ऑन्डेंसेट्रॉन दिया कुछ वॉमिटिंग के केसेस को। मेरे फ्रेंड्स नीचे पार्टी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। बट मैं नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मेरी लॉन्ग ड्यूटी है। अभी थोड़ी देर सोने को मिल जाएगा तो वही बड़ी बात होगी। आई थिंक आज काफ़ी हेक्टिक नाइट होगी, मेरे को वाइब भी आ रही है वैसे। हाँ यार, 2-3 दिन से लॉन्ग ड्यूटी वाले जो इंटर्न्स थे उनका काफ़ी फ्री था, सारा लोड आज मेरे पे आ गया। सो लेट्स सी, अगर सोने को मिल गया रात में तो अच्छी बात है, वरना अगर वो पेशेंट डिलीवर करती है फिर तो पोस्टनेटल केयर और
उन सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में काफ़ी समय चला जाएगा, तो सोने को नहीं मिलेगा, तो आई विल कैच सम स्लीप। चलो यार, आई होप तब तक कोई नया पेशेंट ना आए, लेट्स सी। सो गाइस, इट इज़ 2:30 AM इन द मॉर्निंग एंड एक कॉल आया रिगार्डिंग अ पेशेंट जिसको सर पे चोट लग गई थी, तो स्कैल्प लैसरेशन था। अगेन ही वॉज अ ड्रंकन पर्सन, गिर गया, स्लिप हो गया एंड थोड़ा तो मैंने ड्रेस कर दिया, सूचर की ज़रूरत तो नहीं थी। एंड जो प्रेग्नेंट फीमेल एडमिटेड है उसका कोई भी डायलिटेशन नहीं मिला पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पे। ऑस इज स्टिल क्लोज, बर्थ कैनाल इज़ क्लोज, देयरफॉर सुबह जो है 7 बजे एक और बार पीवी करेंगे एंड उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके बल्लभगढ़ भेज देंगे, राइट। अभी थोड़ा आई विल कैच सम स्लीप। ऑल्सो गाइस, जो न्यूनेटल सेप्सिस का मैंने आपको केस बताया था, वो 5 डे ओल्ड जो बच्चा था जिसको फीडिंग डिफ़िकल्टी थी, यूरिन 2 बार पास किया था एंड वीक क्राई हो गई थी, वो बच्चे को एक्चुअली सेप्सिस था, फीवर था एंड उसका ब्लड रिपोर्ट वापस आया। उसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आप भी जानते होगे 4,000 to 11,000 नॉर्मल कंसिडर करते हैं, उसका ऑन द 15,000 साइड था और काफ़ी हाई है एंड उसका सेप्सिस स्क्रीन भी पॉजिटिव था। उसका यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था बिकॉज वो यूरिन में पास किया था। सो या वी मेड द राइट कॉल, सस्पेक्ट किया था सेप्सिस ही है एंड उसको हम लोग ने रेफ़र कर दिया बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ पे जो एम्स की टीम है उसको मैनेज कर लेगी। सो दिस इज़ व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट PHCs कि नॉर्मल चीज़ें तो कंडक्ट करनी है, बट कुछ एबनॉर्मल हो जो हमसे नहीं मैनेज होता है तो हमें एट वेरी अर्ली स्टेज उसे डायग्नोस करना है एंड देन रेफ़र करना है टू अ हायर सेंटर। या सो आई होप वो दैट बेबी वो रिकवर कर जाए जल्दी से जल्दी एंड दैट वुड गिव मी इमेंस सेटिस्फैक्शन यार, अच्छा लगेगा। सो गाइस, अभी एक और पेशेंट आया है, शी इज़ अ लेडी एंड गार्ड भैया ने बताया कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो जाना पड़ेगा, लेट्स सी क्या केस है। सो गाइस, इनको नेबुलाइज साल्ब्यूटामॉल पे एंड नेबुलाइज्ड नॉर्मल सेलाइन पे स्टार्ट कर दिया है। अभी इनका नेबुलाइजेशन चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। सो गाइस, इट इज़ राइट नाउ 4:30 AM इन द मॉर्निंग एंड या 4.5 hours मोर टू गो एंड फिर ये लॉन्ग ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। रात को यार प्रॉब्लम होती है, स्पेशली बार बार आपकी स्लीप इंटरप्ट होती है एंड यू आर नॉट यूज्ड टू इट। अभी जस्ट वो आफ्टर दैट नेबुलाइजर लेडी हैड गॉन, एक और पेशेंट आई एंड उसके बाद से कोई नहीं आया। होपफुली अब नहीं आएगा कोई तो आई कैन गो टू रूम एंड कैच सम मोर स्लीप, राइट। चलो बाय। सो गाइस, इट इज़ 7 AM इन द मॉर्निंग। 4:30 to 6 o'clock मैं सो पाया एंड 6 बजे फिर कॉल आ गया। ये आप देख सकते हो एम्बुलेंस में ये जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे एडमिटेड थी वार्ड में एंड इनका जो है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का केस था। बेसिकली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना एमनियोटिक मेम्ब्रेन में, वो रप्चर कर गया था एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर सारा फ्लूइड बाहर हो गया था विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द मदर एज वेल एज द बेबी। सो हम लोग ने उनको ऑब्जर्वेशन में रखा था, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया 3 बार एंड उनका सर्वाइकल डायलिटेशन नॉन प्रोग्रेसिव था। देयरफॉर भी हम लोग ने इनको एंटीबायोटिक का इन्फ्यूजन दे दिया मेट्रोजिल का। अब इनको रेफ़र कर रहे हैं बल्लभगढ़, वहीं पे केस हैंडल होगा। वी हैव कंसल्टेड विद द सीनियर रेजिडेंट ऑफ गाइनी देयर इन द बल्लभगढ़ हु इज़ ऑन कॉल राइट नाउ एंड दे विल हैंडल द केस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। सो गाइस, इट इज़ 9 AM इन द मॉर्निंग, टाइम टू एंड द व्लॉग। 24 आवर मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है एंड नेक्स्ट को इंटर्न मेरा टेक ओवर कर चुका है। बस ये कहना चाहूँगा यार, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 24 आवर ऑन कॉल का फ़ायदा ये होता है यार, आपको सुबह शाम रात वैरायटी ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं। ऑल दी बेसिक इमरजेंसीज या फिर जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में हो सकती हैं, रिलेटिव्स को हो सकती हैं, नेबरहुड में होती हैं, वो उस टाइप के केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। और OPD अगर आप कंबाइन कर दो तो विलेज पोस्टिंग ना एक कंप्लीट पैकेज हो जाती है फॉर ऑल दी टाइप ऑफ केसेस बेसिकली दैट यू विल सी ऑन ए डे टू डे बेसिस, राइट। सो सबसे बेस्ट टेक अवे चीज़ आई फील विलेज पोस्टिंग की यही होती है कि आपको वैरायटी ऑफ केसेस देखने को मिल गया और दूसरी चीज़ आपको हैंड्स ऑन मिल जाता है। आप ड्रग्स देना शुरू करते हो, आप IM देते हो, IV देते हो, बाकी आपको वैक्सीनेशन का सारा प्रोटोकॉल पता चल जाता है, कैसे वैक्सीन देना है, कब देना है, वो पता चल गया। फिर डिलीवरी कैसे होती है आप वो सीख लिए एंड न्यूनेट्स को कैसे मैनेज करना है पोस्ट डिलीवरी, क्या क्या वैक्सीनेशंस देनी है एंड किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब आप सीख जाते हो। एंड सिर्फ ये तो टेक्स्ट बुक्स में हम लोग पढ़ ही रहते हैं, बट हैंड्स ऑन करने को मिल जाता है। सो ये आई थिंक
यू नो काफ़ी इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहेगा. एंड आगे भी लॉन्ग ड्यूटीज़ लगेंगी. एंड यस, एग्जॉस्टिंग होता है, टायरिंग होता है, स्लीपलेस होता है समटाइम्स पेशेंट रात को नहीं आते तो आप 5-6 घंटे आराम से सो पाते हो. पर मेरे साथ अभी दोनों लॉन्ग ड्यूटीज़ में ऐसा नहीं हुआ है. होपफुली कभी मेरे को भी आराम से सोने को मिलेगा रात को. बट हाँ, अगर आप जग रहे हो तो इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें सीख रहे हो जो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है. एंड दैट इज़ व्हाट माय सीनियर्स हैव सेड, एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड से टू माय जूनियर्स कि यस, विलेज पोस्टिंग आई थिंक आपको सबसे अच्छा एक्सपोजर देती है, हैंड्स ऑन देती है रियल लाइफ सिनेरियोज़ का एंड डे टू डे केसेस का. राइट. सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, मेहनत करो, नीट आपका आने वाला है. एंड आप भी सिलेक्ट हो गए, देन 5 years डाउन द लाइन आपको भी खुशी होगी, आप भी हैंड्स ऑन आपको एक्सपीरियंस रहेगा, आप भी डॉक्टर बनोगे. एंड या काफ़ी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा एंड इट विल बी कम्प्लीटली वर्थ इट. राइट. सो मेहनत करते रहो. ऑल द बेस्ट.